Good morning, students of class 4. So, today we are going to start the next part of chapter number 20 Eating Together. Now, let's start. Midday meal. It is almost 1 o'clock in the afternoon. The smell of food cooking is coming from the veranda, and our stomachs are rumbling. We are so hungry, we are not able to pay attention to the lesson in the class. लगभग दोपहर के 1 बज चुके हैं। हमारे स्कूल के वरांडा में गरम खाना पकाया जा रहा है और हमें उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और भूख की वजह से हमारे पेट से गुड़गुड़ की साउंड आ रही है। हम इतने भूखे हैं कि हम क्लास में ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। Ding, ding, ding. At last, now the bell rang. All the children ran out and went to wash their hands. Master Moshai sent all the children to the hand pump at the corner of the courtyard. डिंग डिंग डिंग। एट लास्ट बेल बज ही गई और सारे बच्चे बाहर चले गए और जल्दी जल्दी अपने हाथों को धोने लगे। मास्टर मोशाई यानी कि हमारे सर ने सभी बच्चों को हैंडपंप के पास जो कि स्कूल के कोने में था, हमारे कोर्टयार्ड में, वहाँ पे सभी बच्चों को भेज दिया हाथ धोने के लिए। एनोंडो सी दैट एवरीवन वॉशेस देयर हैंड्स प्रॉपरली, ही कॉल्ड। उन्होंने हमारे स्कूल के पियोन एनोंडो को भी हमारे पीछे भेज दिया। After washing our hands, we all stood in queue to take our food. Some had their own boxes and others had plates. Then we all sat down in a circle with our food. Before we started to eat, we sang together, we played together, we eat together. For the good of everyone, we will always be together. हाथ धोकर हम सभी लाइन में खड़े हो गए अपना अपना खाना लेने के लिए। कुछ अपने घर से डिब्बी लेके आए थे, किसी किसी के पास अपने खुद के प्लेट्स थे। उसके बाद सर्कल में बैठ गए खाना खाने से पहले हमने अच्छे से प्रेयर भी की। टुडे देयर इज भट शुक्तो rice with vegetable and gravy in our meal. Yesterday we had luchi and chola dal. Outside Didi Moni's room, a list of food items has been displayed. It tells what we will get on different days of the week. Would it not be wonderful if on some days we got an extra treat, maybe something sweet? आज बच्चों को स्कूल में भट चुक्तो मिला है। भट यानी कि राइस और शुक्तो मीन्स मिक्स वेजिटेबल की सब्जी। और कल हमें पूरी और छोला दाल मिली थी। दीदी मोनी के रूम के बाहर खाने की एक लिस्ट लगी हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि हमें अलग अलग दिनों में क्या क्या खाने का सामान मिलेगा। कितना अच्छा होगा ना अगर हमें किसी दिन कुछ अलग खाने को मिले, शायद कुछ मिठाई मिल जाए खाने को। There is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our plates in the circle and sit next to a different child. I really I really like this because I can meet new children and make new friends. Okay. हमारी लंच टाइम का मज़ेदार हिस्सा ये है कि हम हर दिन अपने बैठने की जगह को चेंज करते रहते हैं जिससे कि मुझे और बाकी सब बच्चों को किसी नए बच्चे के साथ बैठने का मौका मिलता है। The food was not always very nice. Sometimes rice was of poor quality, sometimes it was not properly cooked. Some parents did not like their children to eat such food. लेकिन स्कूल में जो फूड दिया जाता है वो हमेशा उतना अच्छा नहीं होता। कभी कभी चावल ठीक से पके नहीं होते, कभी कभी खाना ठीक से कुक्ड नहीं होता। Didi Moni explained to them it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decided to help. लेकिन हमारी दीदी मोनी ने हमें समझाया कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी बच्चों को हॉट, फ्रेश और कुक्ड फूड ही मिले। Now things are better. We eat fresh, hot, and properly cooked food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. अभी हालात बहुत अच्छे हैं। हमें अच्छे से पकाया हुआ गरम गरम टेस्टी खाना मिलता है। अगर बच्चा छोटा है तो वो कई बार अपना खाना फिनिश नहीं कर पाता, लेकिन हम जैसे बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए हैं, हम अपना खाना ख़त्म करके भी थोड़े बहुत भूखे रह जाते हैं। Nowadays,
Many schools give food in school during the day. It was not always like this. When my Didi was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. Some children come to school in the morning without eating anything. Imagine having to study on an empty stomach. आजकल बहुत सारे स्कूल्स में दोपहर के समय खाना मिलता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में थी और वो छोटी बच्ची थी, तो उन्हें आफ्टरनून में स्कूल में मील नहीं मिलता था। कुछ बच्चे तो सुबह सुबह घर से बिना कुछ खाए ही आ जाया करते थे। खाली पेट में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट। हर बच्चे का अधिकार है। Many children in our country are not able to get even one full meal every day. Many of them go to school empty stomach and cannot study properly. कई बच्चे ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिन्हें फुल मील मीन्स पौष्टिक खाना, जिसमें दाल चावल रोटी और सब्जी, ये सब नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे एम्प्टी स्टमक ही स्कूल चले जाते हैं और वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। Some years ago, the highest court of our country gave an important decision. All children up to elementary school should be provided with hot, cooked food. This is the right of every child. कुछ सालों पहले द हाईएस्ट जो ये हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, उन्होंने एक ज़रूरी फैसला सुनाया कि जितने भी बच्चे हैं अप टू एलिमेंट्री स्कूल, उनको गरम अच्छा पका हुआ खाना मिलेगा और ये हर बच्चे का अधिकार है। सो चिल्ड्रन, go through this chapter once and thank you children.